Last time we dealt about the bloodline part 1 and we understand how blood connected generation to generation. How blood connected Adam to Abraham, Abraham to Isaac, Isaac to Jacob, Jacob to David, David to Jesus. How blood brings curses or how blood brings a blessings. I wish आज कोई हो. यही लहू था जो लहू जनरेशन टू जनरेशन चलते हुए आ रहा था. कैसे लहू जनरेशन से कनेक्ट होता है. And last time we dealt about the lesbians, gays, homosexuals, sexuality, and so many things, you know. हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के साथ डील किया था. याद है? Yeah. This is a part 2. ये ब्लड लाइन का पार्ट 2 है और अल्टर का पार्ट 4 है. जैसे कि मैं अभी अल्टर का टॉपिक भी कंटिन्यू कराऊंगा आप लोगों के लिए और ब्लड लाइन भी कंटिन्यू कराऊंगा. Now listen to me and listen to the Holy Ghost. Whenever we talked about blood need a right place to occupy generation. I wish आज कोई हो. लहू को एक ऐसी जगह चाहिए जिस जगह पर लहू गिरे उस जगह से लहू आने वाले पीढ़ियों को थाम सके. Blood need a right place. Blood need a right person. Blood need a right thing to occupy something deep, to occupy generations, to occupy ministry, to rule over the nation to nation, curses to curses, blessings to blessings. I wish आज कोई हो मेरे साथ. जब जब लहू गिरता ना बेटा, जब जब लहू गिरेगा कुछ तो राजकीय अधिकार लहू के पास आता है. Blood needs something to occupy something. Shagadariada. There is a lot of errors in blood. There is a lot of errors for the blood. बहुत सी ऐसी रुकावटें जो लहू में है और बहुत सी ऐसी रुकावटें जो लहू के लिए है. अभी जो डील करने वाले हैं ना, लास्ट टाइम जो टॉपिक सीखा हम लोगों ने कि कैसे लहू आता है, कैसे लहू क्या क्या लेकर आता है और क्यों लेकर आता है, पर इस लहू को रोका कैसे जाए, कैसे हम लोग इससे फ्री हो सकते हैं, कैसे ये ब्रेक किया जाता है. आई विश कोई हो फिर आज जो फ्री होना चाहता हूं. Blood brings something deep. Is in blood. In a blood, there is a sickness in blood. There is a lot of things. आपको पता है बीमारियां कहां से आती है? लहू से. आपको पता है कर्सेस कहां से आते हैं? लहू से. आपको पता है ब्लेसिंग्स कहां से आती है? लहू से. तेरे लहू में इतनी ताकत चाहिए कि तू को आज कुछ समझ सके. तो मुझे लगता है आज मेरे बच्चे हैं जो सुनने के लिए तैयार है. राइट? आज आपका बाप आपको कुछ तो भी डीप सिखाने वाला है जिसको सुन के आपका माइंड ब्लास्ट होना चाहिए. Listen to me, listen to the Holy Ghost. Blood connects with altar and altar connects with blood. लहू वेदी के साथ है और वेदी लहू के साथ है. If there is no altar, there is no blood. I wish कोई हो. If there is no blood, there is no altar. And there is no altar and there is no blood. Because blood connects with altar and altar connects with blood. There is no compromise within a blood and within an altar. There is no compromise with blood and with altar. दोनों के साथ कोई compromise नहीं हो सकता. Because the altar calls and the blood calls. There is a difference between blood and altar. ध्यान से सुनना आज. क्योंकि बेटा जब तू वेदी के लिए काम कर रहा है, वेदी लहू के लिए काम करती है, और जब तू लहू के लिए काम करता है तब लहू वेदी के लिए काम करता है. आई विश आज कोई हो. If there is a blood,
there is an altar, and there is altar, there is a blood. जब जब लहू गिरेगा तब तब वेदी बनेगा. आपको that's why when you look at a real man of God who walks upon the altar, who stands upon the altar, he's a man of sacrifice. He's a man of altar. जब आप किसी वेदी पे खड़े रहने वाले व्यक्ति को देखते हो ना, जो खुदा का दास हो, he's a man of sacrifice. क्या sacrifice मांगता है खुदा? God need a blood. I wish आज कोई हो. प्रभु को लहू चाहिए बेटा. अभी आप बोलोगे प्रभु ऐसा कैसा प्रभु है जो लहू मांगता है? When you understand the blood, you will understand something deep. जब जिस दिन तेरे को लहू समझ में आएगा उस दिन तेरे को कुछ तो गहरा समझ में आएगा. The book of Leviticus, chapter number 19. Oh, sorry, chapter number 9, verse 18. Come on, open your Bible. The book of Leviticus. लय व्यवस्था 9 अध्याय. Book of Leviticus, chapter number 9, verse 18. Listen to me, listen to the Holy Ghost. बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया. I wish आज कोई हो. Anyone up जिसको ब्लड के बारे में ड्रीम्स आता हो, एनीवन आप जो ब्लड से डरता हो, एनीवन आप जिसको ब्लड से एलर्जी हो, एनीवन आप जिसके ब्लड में इश्यूज हो, एनीवन आप कि कोई हो जो ब्लड के लिए हो. आज मैं ब्लड टॉपिक डील कर रहा हूं. एनीवन आप जिसके ब्लड में बीमारी है. नाउ लिसन टू मी. फिर आज का टॉपिक आपके लिए. एनीवन आप कि जो कर्सेस, जो बाकी के तकलीफों के अंदर फंसा है. There is a problem within your blood. जब जब आप लहू के साथ जाओगे कुछ तो तकलीफ होता है. You know the Bible says जब भी बलि चढ़ाया गया, बाइबल में लिखा है व्यवस्था के अंदर जब बलि चढ़ाया गया, बलि चढ़ाने के बाद God does not need your sacrifice. प्रभु को तेरा त्याग नहीं चाहिए था. ध्यान से सुनना. बाइबल में लिखा है जब बलि चढ़ाया ना, चढ़ाया वो मांस प्रभु को नहीं चाहिए था, पर मांस वेदी पर चढ़ाया गया. चढ़ाने के बाद मांस से अभी कुछ लेना देना नहीं था. बाइबल में लिखा है उसमें से जो लहू निकला वो लहू उन्होंने लिया और मूसा के हाथों में दिया. आई 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 विश कोई हो. प्रभु ने बोला मेरे को मांस नहीं चाहिए, मेरे को लहू चाहिए. That's why when you know, जब आप किसी हिंदू रिचुअल चीजों को देखते हो, जब आप किसी हिंदुज्म की चीजों को देखते हो, क्या होता है पता है? हिंदुज्म में बलि दिया जाता है. बलि किसका? बकरी का, गाय का, बच्चों का, हर चीज का. क्यों? वो जब अपने परमेश्वर, अपने ईश्वरों को खुश करना चाहते हैं ना, जब वो कोई मन्नत मांगते हैं ना, जब वो कुछ चाहते हैं ना, वो अपने खुदा के लिए, अपने भगवानों के लिए बलि लेकर जाते हैं. कोई मुर्गी लेकर जाएगा, कोई बकरी लेकर जाएगा, कोई कुछ और लेकर जाएगा. क्यों लेकर जाते? कभी सोचा आपने इस बारे में? आपने डीपली अंडरस्टैंड किया इन चीजों को? कभी आप डीप गए इन चीजों के लिए? डीपली चीजें पता चलेगी. तो रिचुअल प्रोसेस यानी कि धार्मिक चीजें हमेशा ब्लड के लिए होती थी. हमेशा. When you sacrifice something, वो चीजें जो काटा गया वो कटे हुए से मतलब नहीं था, उस कटे हुए में से जो लहू बाहर आया उससे मतलब था. आई विश कोई हो. बाइबल में लिखा जब बलि चढ़ाया गया ना, वो लहू लेकर मूसा के हाथों में दिया गया और उस लहू को पकड़कर मूसा ने वेदी पर छिड़क दिया. आई विश कोई हो. नाउ लिसन टू मी. उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़ों में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती थी उसको और गुर्दा सहित कलेजे पर की झिल्ली और उसको भी उसके हाथ में दिया. और उन्होंने चर्बियों को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई. Now listen to me. There is a burnt offering and there is a sacrifice offering. याद रखना,
जो जलाई जाने वाली बलि थी या फिर जो जलाए जाने वाला परमेश्वर के लिए बलि था वो अलग था, और जो प्रभु के पास आने वाला जो चीज था वो अलग था। See, there is a sacrifice. There is a lot of different kinds of sacrifices. अलग अलग तरीके के त्याग है। आप मेल बलि चढ़ा सकते हो, अन्न बलि चढ़ा सकते हो, पाप बलि, दोष बलि, हर अलग अलग तरीके का बलि था, और ये सब बलि वेदी पर जलता था। याद रखना, इसको भी मैं आपको अलग टॉपिक के साथ सिखाऊंगा, क्यों वेदी को जलाया जाता था। वेदी को इट मींस कि वेदी के ऊपर वो बलि जो था ना, उस सैक्रिफाइस को अल्टर के ऊपर क्यों जलाया जाता था, और क्यों उसको आग से ही जलाया जाता था, क्यों उसको पानी में बहाया नहीं जाता था, क्यों उसको मारकर दफनाया नहीं जाता था, क्यों उसको लोगों को बांट दिया नहीं जाता था, जलाया ही क्यों जाता था। There is a difference between a burnt offering and there is a difference between a blood offering. I wish कोई हो। खुदा आज आपको मदद करे टॉपिक समझने के लिए। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पाप बलि, होम बलि, मेल बलि चढ़ाकर वो नीचे उतर आया। मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने आग निकली, यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अभी इससे जो आपको समझ में आता है ना, वो ये चीज है, ब्लड कनेक्ट्स विथ अल्टर। लहू वेदी के साथ जुड़ा है। जब जब लहू बहेगा ना, उस जगह पर वेदी बनेगा। इसके लिए जब बलि दिया गया, मूसा ने लहू को लिया और लहू किधर छिड़का, पता है? वेदी पर छिड़का। See, there is a 3 types of part in our topics. हमारे विशेष शिक्षाओं में I love altar. मेरे आज तक के इस मिनिस्ट्री के समय में, इस मिनिस्ट्री के जर्नी में, I understand just one topic. I deeply understand one topic. क्या पता है? अल्टर। मैं बहुत गहरे से सब्जेक्ट को सीखा, बहुत गहरा। अल्टर मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रभु ने मेरे को बिठाकर सिखाया। अल्टर, when you understand the altar's call, you will understand how to walk with the altar. You understand the man of altar is a man of fire. You understand the man of fire is a man of power. जब जब आप वेदी को सीखोगे, वेदी अकेली है जब तक लहू नहीं आता। That's why when you understand the part 1 of altars, you know, जब आप part 1 को देखते हो ना, part 1 के अंदर मैंने आपको 3 चीजें सिखाई। Altar need sacrifice, blood and seed. वेदी को क्या चाहिए बेटा? Sacrifice, blood and seed. When you sow your seed, किधर किधर अपने भेंट को बोता है तू? आपकी भेंट किधर दी जाती है? वेदी पर। आपका त्याग किधर दिया जाता है? वेदी पर। आपका लहू किधर दिया जाता है? वेदी पर। लहू जिधर गिरेगा उधर ही वेदी बनेगा। आई विश कोई हो, मैं किसी को सिखा पाऊं। सी, कभी आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा? जस्ट एन एग्जांपल, ओके। मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा था, पुणे में मेरा मीटिंग था, लाइक भोसरी या चाकन में कहता, मेरे को याद नहीं है। और मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरे 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, हम लोग कार में थे, और एक इंसान 2 व्हीलर के ऊपर जा रहा था। 2 व्हीलर पे जाते जाते हाईवे पे उसको इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, माय गॉड, मेरे कार के सामने उसका खोपड़ी खुल गया और उसके खोपड़ी से पूरा ब्लड रास्ते पे बह चुका है। मैं इसको ऐसे आंखों से देख रहा हूं, वो तड़प रहा है, उसका पूरा ब्लड रास्ते पे बह गया। आपको क्या लगता है फर्स्ट टाइम था? नहीं, पहले बार जिस दिन उस रास्ते पर लहू गिरा था ना, उस रास्ते के ऊपर एक वेदी बन गया, जिस वेदी को बार बार लहू चाहिए। इसलिए याद रखना, जब एक्सीडेंट होता है उस रास्ते पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कंटिन्यूली एक्सीडेंट होते रहेंगे, बार 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 बार। क्यों? क्योंकि वो रास्ते पर ना वेदी बन गया, और वो वेदी अभी लहू चाहता है। जब तक वो गिरा कर किसी का लहू पिएगा नहीं ना, तब तक वो रास्ता शांत होगा नहीं। याद रखना, इसलिए हर दिन एक एक्सीडेंट होना जरूरी है। लोगों को लगता है ये कुछ नहीं, इट्स एन अल्टर। शायद कोई हो मेरे साथ। And women is a result of altar.
शायद आज मैं आपको सिखा पाऊं। आपको पता है अपने टीचिंग्स के अंदर वुमेन्स सबसे ज्यादा स्त्रियां आप लहू को लेकर चलती हो हर महीने। आई विश आप समझदार हो, यू नो यू आर अ वुमन ऑफ अल्टर। पर आपको पता है ये ब्लड कहां से आया? बिकॉज द अल्टर बिटवीन अ स्नेक एंड द वुमेन। आपको पता है फिर वो 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी ना, उसको मालूम था ये अल्टर कौन तोड़ने वाला। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ ज्यूज, देयर इज लॉट ऑफ लाइक शास्त्री, फरीसी, शिक्षक, ज्ञानी, बहुत लोग थे। किसी ने उसको चंगा नहीं किया। बहुत वैद्य थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी थे उस वक्त, किसी ने उसको ठीक नहीं किया। पर उसको मालूम था मेरे ब्लड को ठीक करने वाला एक इंसान है। काश जो ब्लड कैरियर होता है ना, जो ब्लड रिप्रेजेंट करता है, जो ब्लड को प्रोड्यूस करता है, वही मेरे ब्लड को ठीक कर सकता है। विश आज कोई हो जिसको आज आंसर मिले। शायद कोई हो आज। दैट्स व्हाई उस लेडी को मालूम था कि जिसने ब्लड को बनाया वही ब्लड को ठीक कर सकता है। कैसे ठीक हुआ? कपड़े को छूने से आपको लगता है ना, देयर इज एन अल्टर। जब अल्टर के ऊपर उसने उसको अधिकार दिया जिसका अधिकार था, उसी वक्त लहू शांत हुआ। आई विश कोई हो। दैट्स व्हाई तेरे लहू पे ना किसी को अधिकार चाहिए, क्योंकि जब तक लहू के ऊपर अधिकार नहीं ना, लहू बात नहीं करता। जब तक लहू के ऊपर अधिकार नहीं ना, लहू बोलता नहीं। जब तक लहू के ऊपर अधिकार नहीं, लहू अधिकार देता भी नहीं। एक मां को देखना, जब एक मां गर्भवती होती है और वो मां जब अपने बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चा पानी के साथ बाहर नहीं आता। लास्ट टाइम भी समझा, वो बच्चा लहू के साथ आता है। अभी वो बच्चे को इसने जन्म दिया, ये क्या प्रूफ था? ब्लड। ब्लड इज अ प्रूफ of generations. Blood is a proof of DNA. Blood is a proof of each and every kinds of relation is built upon the blood. हर तरीके का रिश्ता लहू पर टिका है। I wish कोई हो। याद रखना, इसलिए जब जब लहू आता है ना, अपने लहू को वेदी पर चढ़ाओ। इसलिए मूसा ने क्या किया? बलि दिया लहू को। पर याद रखना, वेदी का अभी जो अभी आपको हिस्सा सिखा रहा है, इट्स इन पार्ट 4, द अल्टर पार्ट 4 एंड द ब्लड लाइन्स पार्ट 2। ब्लड लाइन का सेकंड पार्ट है। अभी अल्टर के पार्ट के अंदर और भी अलग अलग तरीके के डिविजन्स आते हैं। देयर इज ओनली ब्लड। पर सिर्फ लहू से काम नहीं चलता वेदी को, बिकॉज मेन मास्टर जो है ना, वो अल्टर है। और मेन मास्टर के जो सब पार्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स हैं, वो ब्लड है। और अभी और जो सब्जेक्ट्स आएंगे, आपका माइंड ब्लास्ट होना चाहिए इन सब्जेक्ट को सुनकर मेंटरशिप में। Because I mentor you, मैं आपको इसके लिए मेंटर कर रहा हूं क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के साथ अपने आप को बिल्डअप कर सको। मैं चर्चेस में प्रीच नहीं कर सकता, मैं ये यूट्यूब, फेसबुक इस जगह पे प्रीच नहीं कर सकता, पर मैं आपको कर रहा हूं। याद रखना, यह माय इन्वेस्टमेंट। आई विश आप मेरे साथ हो। और मेरा इन्वेस्टमेंट अगर खराब किया ना, याद रखना फिर। Holy Ghost, I worship your name, Abba. Now listen to me, listen to the Holy Ghost. एक चीज सिखाता हूं आपको। आपकी वेदी मरी हुई क्यों पता है? Your altar is dead. आपको पता है, जिस वेदी पर चिन्ह और चमत्कार नहीं, जिस वेदी पर प्रकाशन नहीं, जिस वेदी पर बातें नहीं, जिस वेदी पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, जिस वेदी पर त्याग नहीं, वो वेदी मरा हुआ वेदी है। आई विश कोई हो। That's why your altar is a dead. बेटा, तेरे सेवा में तेरे को फल क्यों नहीं लग रहा पता है? क्योंकि तेरा वेदी मरा हुआ है। अभी वेदी मैंने आपको सिखाया वेदी कहां से बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है। आप सभी को पता अल्टर क्या है? नहीं पता तो मैं आपको अल्टर का क्या कहता है, यूट्यूब के ऊपर जाकर अल्टर ये टॉपिक्स देखो एक बार, आपको समझ में आएगा कि अल्टर कैसे बनता है। जिस दिन आपको अल्टर में समझ में आ जाएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाई जब आप अल्टर के ऊपर आते हो, अल्टर आपको मरा हुआ मिलता है। तेरा वेदी तब तक मरा हुआ है जब तक तेरे वेदी पर लहू नहीं। You never shed your blood on the altar. जिस दिन आप आपके वेदी पर लहू बहाना शुरू कर देते हो, आपका वेदी जिंदा होने लग जाता है। Shed your blood.
अपने लहू को दो ना एक बार, कैसे वेदी जिंदा होता है देखो। आई विश कोई हो, आई फील समथिंग, शेड योर ब्लड ऑन द अल्टर। जैसे लहू गिरेगा ना, लहू का एक एक कतरा बात करेगा, लहू का एक एक कतरा बात करता है। माय गॉड, योर अल्टर इज डेड बिकॉज़ यू नेवर शेड योर ब्लड। जिस दिन तू तेरा लहू तेरे वेदी पर डालना शुरू करेगा, उस दिन तेरा वेदी ना बात करना शुरू करेगा। That's why the man of sacrifice is always a man of blood. कभी भी पौलुस को देखना, कभी भी ऐसे सेवकों को देखो, आपको भारतीय सेवक को छोड़कर किसी ऐसे सेवक को देखो जो सेवक सच में प्रभु के साथ चलता हो। हर मैन ऑफ गॉड आपको ऐसा लुकड़ा फुकड़ा मिलेगा, ऐसे ऐसे पतला सा मिलेगा। हर एक सेवक, जो सेवक हट्टा कट्टा मोटा होता है उसके शरीर को देखकर बातें करना छोड़ देना, ओके? बिकॉज हर एक स्पिरिचुअल पर्सन, हर एक स्पिरिचुअल पर्सन बहुत वीक होता है। क्यों पता? क्योंकि ना उसका ब्लड वेदी मांगते रहती है। पर मेरे को एक ट्रिक तब समझ में आई जब मैंने अपना लहू वेदी को देना बंद कर दिया। आई सेड वेदी, अब मैं लहू नहीं दूंगा तुझे, क्योंकि लहू वेदी हमेशा मांगती रहती है। याद रखना, जब तक आप जिंदा हो तब तक वेदी आपसे लहू लेगी। मैं थक गया था लहू बहा बहा कर। I sacrificed a lot of things, finance, life, ministries, families, friends, love, churches, equipments, gold, silvers, क्या बोलो, सब कुछ sacrificed है। एक वक्त के ऊपर इंसान थक जाता है वेदी के ऊपर त्याग करते करते, क्योंकि लहू बात नहीं करता। द ब्लड लाइन, लहू बात नहीं करता। आप थक जाते हो आपकी बीमारियों से, आप थक जाते हो आपके बांझपन से, आप थक जाते हो आपके अनफ्रूटफुलनेस से, आप थक जाते हो आपके बीमारियों से, आप थक जाते हो आपके हालातों से। क्यों पता है? क्योंकि तेरे लहू में होकर आ रहा है। और अभी मैं आपको वही सिखा रहा हूं जो चीज आपको डील करनी चाहिए। Now listen to me very well. How to break a power of blood. How to break a power of blood. Because power of blood is always a regenerative things. लहू की ताकत हमेशा पीढ़ियों को बनाने वाली ताकत होती है। याद रखना, एक पंडित के घर से निकलने वाला हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति पंडित ही बनकर आता है। एक ब्राह्मण के घर से निकलने वाला हर एक व्यक्ति ब्राह्मण बोल के ही निकलता है। याद रखना। और एक प्रॉफिट के घर से निकलने वाला हर एक बच्चा प्रॉफिट बोल के निकलता है। My father is a prophet and prophet Arpan is a prophet. जब मेरा बेटा आएगा वो भी प्रॉफिट बनेगा। उसको कभी इंजीनियर बनने नहीं दूंगा मैं, कभी डॉक्टर बनने नहीं दूंगा। No, it's my bloodline. वो बन भी जाए तभी भी उसको भविष्यवक्ता ही सताएगा। आज आप जो हो ना वही आपका लहू बनेगा। याद रखना। लिसन टू मी, लिसन टू द होली गोस्ट। मेरे पूरे परिवार में आज तक इतना रिच, इतना वेल्दी, इतना हेल्दी कोई नहीं हुआ जितना मैं आज हूं। इट्स अ ब्लड लाइन। मेरे को मालूम पड़ा कि मैंने अपने परिवार को जब अपने परिवार का जब पूरा हिस्ट्री उठाकर देखा ना, मेरे पूरे परिवार में मेरे पापा के जितने भाई है, दे ऑल आर लाइक विचेस। ये सब लोग जादू टोना करने वाले लगे। कोई पंडित है, कोई बाबा है, किसी ने बड़ा मंदिर बनाया है, एंड सच काइंड ऑफ पीपल। मैं ऐसे परिवार से बाहर आया जिस परिवार के अंदर मेरे चाचा लोग, मेरे मामा जितने भी है, सब के सब भयंकर मूर्ति पूजक है। भयंकर जादू टोना करने वालों की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे घर में ही है। पर जब मेरा बाप मेरे फैमिली से अलग आया, लिसन टू मी, हाउ टू ब्रेक अ पावर ऑफ ब्लड। क्योंकि मेरे बाप के अंदर वो ब्लड है जो ब्लड मेरे दादा से आया, और मेरे बाप के अंदर वही ब्लड था, वो भी सेम लाइन में था। पर गॉड डिसाइडेड, आई विश कोई हो, प्रभु ने कहा तेरे गर्भ से एक भविष्यवक्ता जन्म लेने वाला है। जब एक भविष्यवक्ता जन्म लेता है, ब्लड लाइन को ब्रेक होना पड़ता है। And 25 years ago, a prophet was born. और खुदा ने कहा ये तेरे ब्लड लाइन को बदलेगा।
मैं 1998 में आया, 1998 में मेरा फैमिली लॉर्ड में आया, और उस दिन से आज तक 12 इयर्स मेरे बाप ने किसी सेवक को दिए। 12 साल के बाद मेरा बाप सेवा में आया, और मैं जब 21 का हुआ, गॉड एनकाउंटर्ड मी एंड गॉड सेड मेरे लिए सेवा कर। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कि मैं सेवा में क्यों आ रहा हूं। आई वॉज इन अ फर्स्ट ईयर, अच्छा कॉलेज है, पुणे का टॉप कॉलेज, MIT कॉलेज, वर्ल्ड में बेस्ट है, अच्छा स्टडी चालू है, सब कुछ ठीक ठाक है, माइंडसेट अच्छा है। गॉड सेड तेरे को मेरे लिए सेवा करना। आई सेड लॉर्ड मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, आई एम नॉट अ सन ऑफ प्रॉफिट, आई एम नॉट अ सन ऑफ प्रिस्ट, मैं नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा तुझे करना होगा। गॉड एनकाउंटर्ड मी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, 3 बार। और जब मैंने प्रभु को देखा ना तीसरे बार, आई सेड लॉर्ड आई एम रेडी। मेरे अंदर जितने आदतें थी, जिस दिन I receive a salvation, Lord removed me from my people, Lord removed me from my drugs, Lord removed me from my music, Lord removed me from my past. Lord ने कहा your bloodline is changed now. I wish कोई हो। खुदा ब्लड लाइन बहुत डिफरेंट तरीके से चेंज करता है। ये मेरे तरीके से हुआ, पर हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। Whenever blood covenants with, you understand the things. Whenever blood covenants bind with the blood, जब भी एक लहू की वाचा लहू के साथ बांधी जाती है, लहू की वाचा लहू के साथ तोड़ी जाती है। लहू की वाचा जब भी लहू के साथ जोड़ी जाती है, लहू की वाचा लहू के साथ ही तोड़ी जाती है। It breaks through the blood. नहीं समझ में आया ना? Listen to me, listen to the Holy Ghost. Listen to me. The first murder of the Bible says Cain killed Abel. Cain ने हाबिल को मारा, और जिस दिन हाबिल मरा, Holy Ghost, कितने लोग सुन रहे हो? बेटा जिस दिन हाबिल मरा ना, हाबिल जिस दिन मरा, हाबिल का लहू नीचे भूमि से चिल्ला रहा था। Why? क्यों? क्योंकि हाबिल का मरने का समय नहीं आया था। हाबिल का अभी तक वो समय नहीं आया जिस समय में हाबिल मर सके। हाबिल को जानबूझकर मारा गया, इसका मतलब उसके देह से लहू को खींचकर बाहर निकाला गया। और बाइबल ने कहा जिस दिन लहू भूमि पर गिरा, लिसन टू मी, लहू किधर गिरा बेटा? भूमि पर। जिस दिन लहू भूमि पर गिरा, उसी दिन भूमि से आवाज आई। इट मींस ये भूमि बात कर सकती है, पर भूमि को बात करने के लिए लहू का जरूरत है। आई विश कोई, मेरे को लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूं आप लोगों के साथ। भूमि बात कर सकती है, पर भूमि को लहू चाहिए बात कराने के लिए। अगर हाबिल का लहू भूमि से बात कर रहा था ना, जस्ट इमेजिन। आपको क्या लगता है मेरा गॉड इतना कैपेबल नहीं है क्या कि वो हेवन से कहे कि मैं मेरे लोगों का उद्धार चाहता हूं और वो भूमि पर उद्धार दे सके? इतना मेरा परमेश्वर कैपेबल नहीं है क्या? मेरे परमेश्वर को स्वर्ग से इधर आने की जरूरत था क्या? पर एक चीज उसको खींच कर लेकर आई, द ब्लड, जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस। जब आप ब्लड ऑफ जीसस को देखोगे ना, माय गॉड, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। आपका लहू तब जाके प्यूरिफाइड होता है जब आप मां के गर्भ से नहीं, परंतु आत्मा के गर्भ से जन्म लेकर आते हो। आपका लहू तब बदला जाता है जब आप किसी भविष्यवक्ता से नहीं, पर किसी, माय गॉड, देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो अपोस्टल, देयर इज नो पास्टर,
जो आपके ब्लड को चेंज कर सकता है। देयर इज ओनली वन जो आपके ब्लड को चेंज कर सकता है। हाबेल का लहू नीचे गिरा, हाबेल का लहू नीचे से चिल्ला रहा था कि लॉर्ड वी नीड अ रिवेंज। पर जिस दिन लॉर्ड का ब्लड, लॉर्ड जीसस का ब्लड उस क्रूस से नीचे गिरा, वो ब्लड सैल्वेशन दे रहा था, है ना? Okay, let me clear something. Everyone knows about Noah. जिस दिन नूहा को पता चला इस पूरे पृथ्वी का प्रभु नाश करने वाला, लिसन टू मी वेरी वेल। प्रभु ने क्या किया? नूहा को बोला, नूहा एक जहाज बना ले बेटा और सबको जहाज में लेके चला जा। नूहा ने कितना टाइम प्रीच किया? 120 years. He preached a gospel of God. एक भी बचाया नहीं। नूहा इतना घटिया इवेंजलिस्ट था कि उसको एक भी आत्मा बचाने नहीं आया, सिर्फ अपने फैमिली को लेके गया। बाकी का पूरा दुनिया सब नेफिलिम्स थे, सबके सब नेफिलिम्स थे। लॉर्ड ने कहा मैं इन सबको मारो। अभी लिसन टू मी, जिस दिन प्रभु ने 40 दिन और 40 रात पानी बहाया ना, बारिश आया ना, ये सब नेफिलिम मारे गए। आपको पता है? पर जब जिस दिन इंसान मरा ना, उनका लहू पानी में मिल गया। आई विश कोई हो। देखो क्या हुआ। पर लहू बात कर ही रहा था। इन सबको मारने के बाद इनका लहू गया किधर? इनके बोन्स, इनका फ्लैश, इनका स्किन, इनका स्पिरिट, सब कुछ लॉर्ड ने नाश किया, पर ब्लड जिंदा था, लहू पानी में मिला हुआ था। अभी हुआ क्या पता है? सब लोग मर गए। और आपको पता है जिस दिन लहू भूमि पर गिरा, यानी ये नेफिलिम्स, ये दानवों का लहू, जिस दिन लहू भूमि पर नाश किया गया, वो लहू ने भूमि को पकड़ लिया, उनके लहू ने भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी क्या हुआ पता है? पूरे के पूरे पृथ्वी के ऊपर इन दानवों का राज होने लगा, क्योंकि लहू इन दानवों का भूमि के ऊपर गिर गया था। और उनका लहू क्या मांग रहा था पता है? द ब्लड ऑफ नेफिलिम्स अट्रैक्ट द गॉड्स जजमेंट। नेफिलिम का लहू प्रभु के न्याय को मांग रहा था। बिकॉज योर ब्लड नीड्स समथिंग, आपका लहू कुछ तो मांगता है। अभी नूहा जैसे ही, लिसन टू मी वेरी वेल, नूहा जैसे ही पृथ्वी के ऊपर वापस एक बार पैर रखा, बाइबल में लिखा नूहा ने वेदी बनाई और नूहा ने बलि चढ़ाया। You missed it. नूहा को क्या जरूरत पड़ा था? अभी ये सोचो, 40 दिन 40 रात बारिश हुआ। आप सबसे पहले अगर पृथ्वी के ऊपर उतरते तो आप क्या देखते? कह रहे बाबा अभी रहना किधर है? मेरे साथ मेरा परिवार है, घर बनाता, ये करता वो करता। नूहा ने ये सब नहीं किया। बाइबल में लिखा जैसे वो नीचे उतरा, उसने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया और उसने एक लहू को दिया, उसने बलि को दिया, क्योंकि नूहा को मालूम था जो नेफिलिम मरे हैं, वो नेफिलिम का लहू भूमि के ऊपर गिरा है और इस भूमि के ऊपर कब्जा नेफिलिम ने कर लिया, क्योंकि उनका लहू गिरा था। नूहा को मालूम था अभी इस लहू को कैसे हटाना है, हाउ टू ब्रेक अ पावर ऑफ ब्लड। आई विश कोई हो जो समझ रहा हो। नूहा को मालूम था, नूहा अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड। नूहा ने वेदी पर निष्कलंक, इनोसेंट सैक्रिफाइस को लिया, प्रभु को दिया और प्रभु को कहता लॉर्ड ये ब्लड तेरे लिए, कि ये लहू जो गिरा है इसको हटा। अब बाइबल में कहा जिस दिन बलि हुआ, प्रभु ने कहा मैं आज के बाद इनको पानी से कभी नहीं मारूंगा, और ये प्रॉमिस होगा, ये जो आकाश में ये धनुष आता है इसका। अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड। शायद कोई समझ पा रहा हो। इसके लिए बाइबल में लिखा है नूहा का आने वाला जनरेशन राजा हुआ पूरे पृथ्वी के ऊपर। पर आपको पता है नूहा को ये सीक्रेट मालूम था, पर उसके बच्चों को सीक्रेट नहीं मालूम था। लिसन टू मी, इफ देयर इज एन एग्जांपल, इफ किसी के बाप ने 2 शादियां किया, इफ किसी के बाप का 3 शादी हुआ, किसी के मां की 2 शादी हो गई, देयर इज एन अल्टर, देयर इज अल्टर। और जब उस मां से जो बच्चा पैदा होकर आता है, वो बच्चा क्या करता है पता है? वही जो मां के पास था, वही लहू को अपने अंदर लेकर आता है। और अभी अब जब बच्चा या बच्ची बड़ी होती है ना, जैसे मां का हुआ, जैसे बाप का हुआ, वैसे खुद भी करती है, वैसे भी उसकी भी 2 शादी होती है। फिर उसका आने वाला जनरेशन, उसका भी वही होता है। इट मींस यू नो, आपने रिहाब के जनरेशन को देखा, रिहाब नहीं, उसका नाम क्या था? राहेल और समथिंग नाम था, राहेल नाम था। शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। बाइबल ने कहा वो वेश्या थी। उसका आने वाला हर एक जनरेशन वेश्यावृत्ति में गया, हर एक। यू नो द सन्स ऑफ जेजबेल,
जेजेबेल जैसे प्रोस्टिट्यूट थी, जेजेबेल जैसे क्वीन थी, उसका आने वाला जनरेशन पूरा का पूरा उसी जनरेशन के अंदर गया जो जेजेबेल कैरी कर रही थी। पर इनको पता नहीं था कि किस तरीके से ब्लड के पावर को ब्रेक किया जाता है। देयर इज अ पावर ऑफ ब्लड जो रिप्रोडक्टिव है, जो रीजनरेटिव है। रीजनरेटिव ब्लड मींस व्हाट? इफ आई एम अ प्रॉफिट, अभी जब मेरा बच्चा आएगा ना, सेम गिफ्ट जो मेरे अंदर है, सेम गिफ्ट जो मेरे वाइफ के अंदर है, जब हम दोनों मिलकर जो बच्चे को प्रोड्यूस करेंगे, जब वो बच्चा या बच्ची जब बाहर आएगी ना, she carry the power of prophet, she carry the power of prophetess, she carry the gift of prophecy, she carry the prosperity, just like me and just like my wife. It's not about generation, it's all about blood. I wish आप मेरे साथ हो. Listen to me. When Elijah prophesied about Jezebel, बोला कि तू ऐसे मरेगी, तेरे को कुत्ते चाट कर खाएंगे। एलिया ने मारा क्या जेजेबेल को? नहीं। एलिशा आया, एलिशा ने भी यह भविष्यवाणी किया कि जेजेबेल तू मरेगी, पर एलिशा ने मारा क्या? नहीं। एलिशा ने अपने एक जवान भविष्यवक्ता को अभिषेक किया, बोला जा जाकर किसको अभिषेक कर? येहू को। येहू क्या करेगा? येहू को अभिषेक करने के बाद, आई विश कोई हो, we need a Zeus anointing to break a power of blood. I wish कोई हो। If I remember, I still remember, जब मैंने मेरे बच्चों को बैप्टाइज किया ना, रिसेंटली 6-7 महीने पहले, या मंथ ऑफ जैन में समथिंग कुछ किया, मैंने मेरे बच्चों को बैप्टाइज किया फर्स्ट टाइम। जैसे बपतिस्मा देके बाहर आया, यू नो द बैप्टिज्म नीड अ ब्लड। मैंने आपको सिखाया ये चीज ना, बैप्टिज्म देके इन बच्चों को बाहर आया, जैसे पानी से बाहर आया क्या, मेरे पैर में कट लग गया। मेरे को लगा छोटा सा, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं, मेरे ध्यान भी नहीं, मैं पानी से बाहर आया, मेरे पैर से धीरे धीरे ब्लड निकलने लगा। मैंने उसको पानी में से वॉश किया, पानी में वॉश करके मैं बाहर आया, फिर से ब्लड आ रहा। मैं बोला प्रभु ये क्या हुआ? मैंने चप्पल निकाला अपना, पानी के अंदर पैर डाला, पूरा पानी लहू से भर गया। और मैंने जब अपने पैर को उठाकर देखा, मेरा पैर में इतना बड़ा कट लगा हुआ था, इतना बड़ा, और मेरे पैर से ब्लड 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 निकलता था। मैं बोला प्रभु अभी तो बैप्टिज्म देके आया। पानी बात करता है, जैसे पानी को लहू मिला ना, पानी बोलता है आई नीड योर ब्लड। जस्ट इमेजिन। इसके लिए जब वेदी बात नहीं करता ना बेटा, इसलिए बाइबल में लिखा है बलि चढ़ाने के बाद मूसा ने लहू को लिया और लहू छिड़का पूरे वेदी पर। क्यों? क्योंकि वेदी लहू मांगता है। द ब्लड नीड्स एन अल्टर, एन अल्टर नीड्स एन ब्लड। अभी ब्लड क्या हो सकता है? अभी आपको क्या लगता है, असली में वही लहू देना है कि जो आपके अंदर है? ये तो पुराने नियम की बात है ना बेटा। God needs a living sacrifice. God does not need a sacrifice, but God needs a living sacrifice. प्रभु को बलि नहीं चाहिए, प्रभु को जिंदा जीवित बलि चाहिए। कल ही मैंने मेरे बच्चों को एक चीज सिखाई। प्रभु क्या चाहता है आपसे? जिंदा जीवित बलि। ध्यान से सुनना। How to break a power of blood, how to break a power of blood's curses, how to break a power of something deep about the blood. एक ऐसी गहरी चीज जो बाप से बाप, पिता से पिता, औरतों से औरतें, स्त्री से स्त्री, पुरुष से पुरुष, बच्चों से बच्चे चलते हुए आती है। और ये ज्यादातर किधर आता है पता है? ये मैटर करता है ब्लड में, मतलब मैरिज में, ये मैटर करता है वंश में, और ये मैटर करता है जनरेशंस के अंदर। सीड में मैटर करेगा। याद रखना, आपका मैरिज डिस्ट्रॉय, आपका मैरिज डिस्ट्रॉय, आपका आने वाला जनरेशन कभी चलेगा नहीं। याद रखना इस चीज को। आपका मैरिज डिस्ट्रॉय, आपका जनरेशन डिस्ट्रॉय। और हमेशा से शैतान आपके मैरिज में ऐसे ऐसे लोगों को भेज देगा जो मैरिज कभी हो नहीं सकता। जिस दिन मैरिज खराब, पूरा ब्लड खराब। जिस दिन माँ बाप खराब, पूरा ब्लड खराब। दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, हु इज योर स्पिरिचुअल फादर। ब्लड का जो बी शुरू होता है ना, लिसन टू मी वेरी वेल नाउ, होली स्पिरिट, pour out your revelations, pour out your deepest revelations, speak through my lips. When blood comes, blood का जब बी आता है, blood का जब बी आता है ना, it comes with the boundaries, it comes with the boundaries. और जब आप ब्लड के साथ जाओगे,
I carry my mother's and my father's blood. और अभी आपको पता है, अगर मेरे को मेरे माँ और बाप का लहू तोड़ना है तो मेरे को एक ऐसा बाप चाहिए जो मेरे बाप के लहू को तोड़ सके. I wish कोई हो. That's why you need a spiritual father. जो मेरा बाप मेरे को बायोलॉजिकल थिंग्स में, जो मेरा बायोलॉजिकल फादर जो मेरे को फिजिकल लाइफ में प्लेस नहीं कर सकता, there is my spiritual father जो मेरे को बायोलॉजिकली और फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली सब जगह पर ब्लेस कर सकता है. Because blood is not a physical thing. Blood is a spiritual thing. अब मेरे को बताओ, प्रभु ये बकरी के लहू से क्या ही खुश होने वाला है? हाँ, प्रभु ये मेढों के, ये बकरों के लहू से क्या ही खुश होगा? But God said, मैं उनका लहू इसीलिए लेता था क्योंकि उनके लहू में दाग नहीं था. क्यों बलि आती थी? बलि इसलिए ली जाती थी क्योंकि बलि के अंदर से जो लहू आता था ना, और लहू प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकता है. There is a way, there is a road, जो रोड आपको अल्टर तक लेकर आता है और अल्टर का रोड प्रभु तक जाता है. Listen to me, listen to the Holy Ghost. When I sacrifice something upon the altar, mashagada rapausta pira akla prosto kopra. Listen to me, listen to the Holy Ghost. The Bible says the first king. The Bible says Elijah and the prophets of Jezebel. Elijah बोलता है नाचो, वेदी पर जितना नाचना है नाचो. बाइबल में लिखा उन्होंने सैक्रिफाइस किया, कुछ नहीं हुआ. उन्होंने अपने आप को मारना शुरू किया, अपने आप के लहू को बहाना शुरू किया. एलाइजा स्टिल इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि क्या हो रहा है. इनका टाइम खत्म हो गया. इसके लिए याद रखना, जिसको वेदी चढ़ा रहे हो ना, जिसको वेदी के ऊपर लहू दे रहे हो ना, और जो आपके लहू को ले रहा है, जो आपके वेदी को पकड़ रहा है, इट्स एन वेरी डेंजरस पर्सन. जो आपके लहू को पकड़ ले, जो आपके वेदी को पकड़ ले, बहुत डेंजरस हो सकता है. प्रोटेक्ट योर ब्लड. आई विश कोई हो. Now listen to me, listen to the Holy Ghost. अभी इंस्टेंटली एडम का ऑपरेशन हुआ. इंस्टेंटली अभी एडम का टमी को कट करके प्रभु ने हवा को बाहर निकाला. प्रभु ने बोला एडम बस हो गया, अभी तेरा प्रेगनेंसी ओवर कर. प्रभु ने एडम का पेट को कट किया. एडम के पेट को कट करके ईव को बाहर निकाला. एडम के पूरे वापस से स्टिचेस डाले और एडम जैसे नींद से बाहर आया, होश में आया. एडम ईव को देखता है. एडम बोलता है यू आर माय ब्लड. आई विश कयो. You are my bones of bone. You are my flesh of flesh. You are my blood of blood. तू मेरा लहू है बेटा. अभी एलाइजा ने क्या किया? एलाइजा अल्टर के पास आया and the Bible says सबसे पहले उसने वेदी की मरम्मत करी. लहू को देने से पहले वेदी की मरम्मत होना जरूरी था. और जब वेदी की मरम्मत हुई, बाइबल में लिखा है एलिया ने वेदी पर एक ऐसे बछड़े को काटा जिसका लहू पूरे वेदी पर फैल गया. आपका मांस काम का नहीं है, आपका शरीर काम का नहीं है, आपका लहू काम का है. जिस दिन लहू वेदी पर गिरा ना, बाइबल में लिखा है जिस दिन ब्लड अल्टर के ऊपर शेड हुआ, आसमान से अग्नि के जैसे जवाब नीचे उतर कर आया. Whenever you shed your blood, God answered with a fire. You need a right blood. तेरे को एक सही लहू चाहिए. You know, altar of Jesus, you know, आपको पता है जीसस का अल्टर क्या था? The altar of Jesus is called the cross. The altar of Jesus is called the cross. इसके लिए वो लहू क्रूस को मांगता है और क्रूस लहू को मांगता है. जिस दिन जीसस ने अपने लहू का क्रूस के ऊपर दिया ना, क्रूस से लहू नीचे बह रहा था. Now I'm talking about altar. I'm talking about blood. Now listen to me, listen to the Holy Ghost. जो थर्ड वे है, थर्ड वे बहुत डेंजरस है, जिसको आप यूज कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, कंटिन्यूसली, जो बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए. हाउ टू ब्रेक अ पावर ऑफ ब्लड. पहले ये चीज याद रख, ब्लड क्या है. लिसन, प्रभु ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा,
मैं तेरे वंश से ऐसे बच्चों को तैयार करूंगा जो आज के पहले कभी नहीं हुए। तेरा वंश आसमान के तारों के जैसे होगा, तेरा वंश इस रेत के समान होगा जो समंदर के किनारे है। क्या लगता है इसको पूरा करने के लिए अब्राहम ने क्या दिया? लिसन टू मी, अब्राहम, प्रभु ने उसको बोला अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने देश को छोड़, मैं जहां दिखाता हूं वहां पे चल। अब्राहम गया, प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा करूंगा। अभी क्या लगता है अब्राहम के लिए जो प्रॉमिसेस, ये कवर्नेंट जो हुई थी, इसको पूरा करने के लिए अब्राहम को क्या देना जरूरी था? बोलो ना। He need to shed his blood, उसको अपना लहू देना जरूरी है, ब्लड। अब्राहम ने कहा ठीक है प्रभु। शकेम में आया, शकेम में आके बाइबल ने लिखा उसने वेदी बनाई और वेदी के ऊपर उसने बलि चढ़ाया। Now finally he got something in spirit. अभी बच्चा हो गया, प्रभु ने कहा तेरा बच्चा मेरे को चाहिए। Listen to me, प्रभु कैसे ब्लड मांगता है? You are a man of God, you are a woman of God, you are a man of altar. आप वेदी के नीचे हो ना, बहुत अच्छी बात है। वेदी के ऊपर आओगे ना, बहुत तकलीफ होएगा। Abraham, the man of sacrifice. Abraham, the man of blood, अपने बच्चे को लेके गया वेदी के पास, वेदी के ऊपर उठाया, छुरा, मारने पर है। Suddenly God answered, God said, stop. क्यों? ब्लड गॉड को क्यों प्लीज करता है? लहू प्रभु को क्यों अच्छा लगता है? हर एक डिमंस को, हर एक अपने आप को जो परमेश्वर कहता उसको लहू क्यों पसंद है? कभी ऐसे भूमि को देखना जिस भूमि पर कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा जो नहीं हो रहा पूरा। मैंने ऐसे कंस्ट्रक्शंस को देखा जहां पर बिल्डिंग्स नहीं बनती, जहां पर घर बनाया जाता, टूट जाता, बनाया जाता, उस जगह पर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मारकर दफनाया जाता, किसी बच्चे को सैक्रिफाइस किया जाता है, या फिर किसी ऐसी चीज को दफना कर दिया जाता है मारकर, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बनाया जाए। एवरी टाइम व्हेन आई सी द थिंग्स जो भी स्पिरिचुअल हो, मैंने सब जगह पर एक ही चीज देखा, देयर इज अ ब्लड, देयर इज अ ब्लड। आप क्या ब्लड दे सकते हो? द ब्लड ऑफ जीसस इज जस्ट फॉर योर लिमिटेशंस। लिसन टू मी, आप बोलोगे कि यीशु ने मेरे लिए पहले से लहू बहाया कि मैं छूट जाऊं। वो तेरे को उद्धार के लिए छुड़ा कर लेकर आया बेटा, वो तेरे को श्रापों से नहीं छुड़ाएगा। द ब्लड ऑफ जीसस इज नॉट फॉर योर कर्सेस, द ब्लड ऑफ जीसस इज नॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स। ब्लड ऑफ जीसस इज जस्ट फॉर यू नो फॉर व्हाट? सिर्फ इसी के लिए कि आप आपके पापों से छूट जाओ, आप उद्धार को प्राप्त कर पाओ। इसके लिए पॉल बोलता है यीशु एक बार मरा, मैं रोज मर रहा हूं। उसने बाप और बेटे की दीवार को तोड़ा लहू देकर, पर आपको अगर अपने लहू पर जयवंत होना है ना, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर ओन ब्लड, योर ओन ब्लड। डेविड सैक्रिफाइस हिज ब्लड, Joseph sacrificed his own blood, Jacob, Peter, Paul, Jesus, Maryam, lot of things, John, कैसे अपने लहू को दिया? The blood means your sacrifice, and not just your sacrifice, your living sacrifice. कल ही सिखाया मैंने मेरे बच्चों को कि प्रभु तेरे से सिर्फ तुझे नहीं चाहता। Lord, I surrender myself. Lord, I dedicated myself. मैं प्रभु अपने आप को तुझे समर्पण करता हूँ। गाड़ यूज नहीं करेगा, गाड़ बोलेगा मर उधर। प्रभु को क्या चाहिए पता है क्या? वो मुर्गी होता है पता है, मुर्गी का गला काटो ना एक बार। आपने कभी चिकन ले जिंदा मुर्गी को कटते हुए देखा है क्या? एक बार देखो, जब जिंदा मुर्गी को काटते हैं ना, तो जिंदा मुर्गी को काटने से पहले उसका गला काटते हैं, उसका गला काटकर उसको फेंक दिया जाता है, वो तड़फड़ करता है। प्रभु ऐसा चाहता है, प्रभु आपका गला काटकर चाहता है आपको, आप तड़पते रहो। ये लिविंग सैक्रिफाइस है। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर नंबर 12 वर्स 1 में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे जीवित शरीर को चाहता है, जो शरीर जीवित बलिदान बोलकर प्रभु को चढ़ाया जाए। इट मींस शरीर में बीमारी आ रही है ना, प्रभु कैसे चढ़ा। इट मींस अगर तू तकलीफ में है, प्रभु कैसे ही जा।
अगर तू इस सारे शरीर के तकलीफों को देख रहा है, यू वोंट बिलीव, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा यहां से फुटा हुआ है, मेरा हाथ फटा हुआ है, मेरे घुटने टूट गए, एक्सीडेंट हो गया। गुरुवार को एक्सीडेंट हुआ और फ्राइडे को मेरा फ्राइडे सर्विस है। मेरे लोगों को पता नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सारे के सारे लोग चर्च में आए और पूरा चर्च भर गए फ्राइडे सर्विस में। मैं ही नहीं हूं, मैं ऊपर बैठा हूं, मेरा घुटना पूरा टूटा हुआ है, पूरे घुटने में जख्म लगे हैं, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। मैंने देखा मेरा चर्च पूरा खाली बैठा है, उनके पास पास्टर नहीं है। मैं लंगड़ते 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 चर्च में आया। मेरे लोगों ने मेरे को देखा, दे वर शॉक्ड, क्या प्रॉफिट को क्या हो गया? एंड आई स्टार्टेड टू प्रे। लोगों ने प्रेयर करना शुरू किया। आई प्रेड, आई प्रेज्ड। जब मैं प्रीच वगैरह करके रिलैक्स हुआ ना, बाहर आया, तब मेरे को रियलाइज है मेरे घुटनों से लहू बह रहा था, मेरे घुटनों से जख्मों से लहू बह रहा था। मेरे को ध्यान नहीं था। God needs such kind of sacrifices. प्रभु नहीं, बहुत नींद आ रहा, सो जाता हूँ, कल प्रेयर करता हूँ। God does not need your sacrifice. God need your living sacrifice. प्रभु आज बहुत भूख लग रहा है, आज ना फास्टिंग नहीं करता, कल करता हूँ। प्रभु रिजेक्ट करता तेरे को। फिर ब्लड देना चाहिए। जिसने ब्लड दिया, when you show your blood, don't show your gold, don't show your silver, finance, show your blood. जब तू तेरे लहू को बोता है ना, तेरे को बड़ा होने से बेटा कोई रोक नहीं सकता। No one. Show your blood, sacrifice your blood, shed your blood. क्या लगता है इतने साल मजाक चल रहा था क्या ये? I complete my journey. I complete my assignments. I complete my visions. हर बार मैं अपने दर्शनों को पूरा करता है। हर दर्शन ने मेरा लहू मांगा है, हर दर्शन ने लहू मांगा है। जब जब दर्शन देखोगे तब तब लहू आएगा, जब जब विजन्स आएंगे तब तब लहू आएगा। But how to break a power of blood? आपको पता है लहू कभी मरता नहीं, ब्लड कभी मरेगा नहीं। ध्यान से सुनना, अभी ब्लड कभी मरता नहीं। कितने लोगों को साल्वेशन मिला है? कितने लोगों का उद्धार हुआ है? अभी इस उद्धार को छोड़कर एक बार क्या करो पता है क्या? प्रभु को एक महीने के लिए छोड़ दो। एक महीने के लिए छोड़कर देखना। जैसे आप प्रभु को एक महीने के लिए छोड़ोगे ना, फिर एक बार जो पुराना जिंदगी था ना, वो सामने आकर रुक जाता। फिर एक बार गाली देना शुरू करोगे, फिर एक बार नशा करना शुरू करोगे, फिर एक बार वही हरकतें करोगे जो प्रभु नहीं था उसके पहले जो होती थी। क्यों पता है? क्योंकि ब्लड कभी मरता नहीं। आप समझदार हो, ब्लड कभी मरता नहीं। That's why ब्लड को चेंज करने के लिए ब्लड चाहिए, मिनिस्ट्री को ग्रो करने के लिए ब्लड चाहिए, मिनिस्ट्री में स्टैंड करने के लिए ब्लड चाहिए, विजन्स को फुलफिल करने के लिए ब्लड चाहिए, फेथफुल होने के लिए ब्लड चाहिए, लव को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड चाहिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने ब्लड चाहिए। और ये वही इंसान कर सकता है जो अपने लहू से प्यार नहीं करता। वरना आप ना आपके लहू से जब प्यार करने लग जाओगे ना, when you love someone, आपको क्या लगता है अब्राहम को मजा आया कि अपने बच्चे को देखकर? अपने बच्चे से प्यार बहुत करता था, एक लौता एक बेटा था बाबा, वो बुढ़ापे का बेटा था। सोचो कितना प्यार करना चाहिए था उसका। प्रभु ने कहा तेरा लहू मेरे को चाहिए अब्राहम। अब्राहम बोलता लॉर्ड जस्ट टेक अप। अपने लहू को कभी प्यार मत करो। जब जब अपने लहू को प्यार करोगे आप बाइंड किए जाओगे, आप बाउंड्रीज में रह जाओगे। How to break a power of blood. Unloved blood देखा है? Unloved blood, unloved blood. जिस लहू से कोई प्यार नहीं करता, ये वो लहू है जो लहू त्यागमय लहू है। Be a unloved blood. जब कभी बिना प्यार के लहू बनोगे तब ये लहू खुदा ग्रहण करेगा। जस्ट लाइक डेविड, सबने रिजेक्ट किया। सैमुएल बोलता है नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। फिर बोलता प्रभु चाहिए तो चाहिए क्या? प्रभु बोलता वही जो रिजेक्टेड है।
प्रभु बोलता वही जो रिजेक्टेड है, जिसको गॉड सिलेक्ट करे उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जिसे लोग रिजेक्ट करे उसे खुदा सिलेक्ट करता है। इफ यू आर रिजेक्टेड, गॉड विल सिलेक्ट यू। नाउ सुनो ना, हाउ टू ब्रेक अ फैमिलियर ब्लड, हाउ टू ब्रेक अ जनरेशनल ब्लड। सिंपल बता रहा हूं, अगर आप समझ पाओ तो। बी अ मैन ऑफ ब्लड। सी, अगर आज प्रभु मेरे को कहे ना, अर्पण आज से तो कॉफी नहीं पिएगा, मैं प्रभु को सबसे पहले सवाल ये पूछूंगा, प्रभु क्यों नहीं पीऊंगा, क्या रीजन है? उसके बाद प्रभु मेरे को जवाब नहीं देगा। प्रभु सिर्फ मेरे को इतना बोलेगा कि अर्पण तो आज से कॉफी नहीं पिएगा। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जब आपको प्रभु बोलता है ना कि बेटा आज से तू ये नहीं करेगी, आप उसी समय सुनकर, लॉयल होकर, फेथफुल होकर, एग्री कर उसके साथ चलना शुरू, और बाद में आप सफर करते हो। आप सफर करने लग जाते हो कि लाइक हाँ लॉर्ड ने बोला था, मैं करने लगी हूँ। उसके बाद जब प्रभु घुमाता ना बेटा, तब पता चलता है। प्रभु मेरे को बोलता है अर्पण तो कॉफी नहीं पिएगा, मैं आपके जैसे नहीं बोलता ओके लॉर्ड तूने बोल दिया मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसओबीडिएंट हूँ, नो। मैं प्रभु को ये पूछता प्रभु मैं क्यों नहीं पीऊंगा, और मेरे को पता चल जाता है अगर प्रभु मेरे को जवाब नहीं दे रहा, इट मींस देयर इज समथिंग एरर। प्रभु ने मेरे को एक बार बोला अर्पण तू चाय नहीं पिएगा, मैं इतना चाय पिया, इतना चाय पिया, इतना चाय पिया, बाप रे बाप रे बाप रे, इतना हद से ज्यादा, इतना बाबा बाबा क्या बोलूं आपको। प्रभु बोलता है तू चाय नहीं पिएगा। मैंने बोला क्यों? प्रभु ने आंसर नहीं किया। मैंने चाय पी लिया, मेरे ब्लड से, मेरे टीथ से ब्लड शेड होने लगा, पूरे मुंह में ब्लड आने लगा, रोज दांत घसता, रोज ब्लड आता। मैं बहुत डर गया, मैं चाय छोड़ा नहीं, फिर भी मैंने गूगल किया, मैंने बोला मुंह से ब्लड आने को क्या कहते हैं? इट्स लाइक अ माउथ कैंसर। मैं इतना डर गया, बोला मेरे को माउथ कैंसर हो गया, अभी मैं क्या करूंगा? मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया। फिर आवाज आई कानों में, बोला अर्पण चाय छोड़। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी डर गया था ब्लड को देखकर, छोड़ दिया। 6 महीने के बाद अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जा रहा था, रास्ते में था, बारिश का माहौल था, हल्की हल्की बारिश हुई थी, मिट्टी पर जैसे पानी लगा, मिट्टी की खुशबू से पहले ही हाँ अलग माहौल में था, और अचानक से चाय का स्मेल मेरे को हिट कर गया। गाड़ी पर था मैं, और चाय का स्मेल मेरे को हिट किया। मैं बहुत बेचैन हो गया अंदर से, मैं बोला मेरे को अभी चाय पीना पड़ेगा। मैंने गाड़ी को टर्न मार के चाय की दुकान में गया, 6 महीने के बाद चाय पिया। चाय पी के घर आया, सुबह उठा, पूरे मुंह से फिर एक बार ब्लड। उस दिन से आज मेरे को चाय छोड़ के 3-4 साल हो गया, उस दिन से आज तक मैंने कभी भी चाय को हाथ नहीं लगाया। इट्स कॉल्ड ब्लड। जब प्रभु बोलता है ना दे दे तो दे दे। क्यों होता है बताइए? अभी आप बोलते हैं प्रभु ऐसा कैसे, क्रेजी सवाल पूछता। गॉड नीड योर ब्लड, गॉड नीड योर ब्लड। आई विश कोई हो। प्रभु जब आपसे ब्लड मांग रहा है ना, गिव हिम विदाउट क्वेश्चंस, गिव हिम विदाउट डाउट, गिव हिम। Listen to me, listen to the Holy Ghost. ब्लड को कैसे चेंज किया जाता है? I'll tell you. मैंने कैसे चेंज किया? I wear a Rolex watch about 8 और 7 के आसपास की थी। अभी मैं शो ऑफ नहीं करूंगा कि मैंने इतनी महंगी वॉच पहनी थी। I wear it, you know. मेरे हाथ में रिंग्स थे गोल्ड के। And one man of God like a परफॉर्म कर रहा था अपनी चीजों को, like he preached about something and the Holy Spirit put in my heart, Arpan, show your ring. Listen to me. Holy Spirit ने मेरे हृदय में डाला। Holy Spirit मेरे को बोलता है अर्पण अपने रिंग को उस मैन ऑफ गॉड को दे। रिंग कितने की थी पता है? बहुत बार बताया मैं आपको टेस्टिमनी, 70,000। ऐसा रिमूव किया, ऐसे हाथ में पकड़ा, हाथ में जैसे आई ना, मेरा दिल धड़ धड़ हो रहा है, धड़ 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 धड़। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ये बहुत महंगा है। मैंने वापस डाला, जैसे वापस डाला ना, आवाज आ रही मेरे को। बोला अगर ये वापस तो रिंग में डालेगा, अपन वापस फिंगर में डालेगा ना, ये रिंग तेरे लिए कुछ काम की नहीं रहेगा अर्पण। फिर निकाला, हाथ में पकड़ा। मैं देना नहीं चाहता उसको,
ऐसा हाथ जा रहा है, ऐसा वापस आ रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है. आई होल्ड इट टाइटली, आई होल्ड. मैंने बोला रिंग देख, मैं तुझे दे तो रहा हूं, इसके बदले में ना मेरे को और चाहिए. मेरे लाइफ में प्रोस्पेरिटी था ही नहीं, मेरे लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों था ही नहीं. हाउ टू चेंज योर ब्लड. इसको देने से पहले इसके साथ वाचा बांधा, बोला दे तो रहा हूं, 70,000 का है तू, पर मेरे को इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना चाहिए. आई स्वीट. उसने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, उसने मेरे को सिर्फ इतना बोला गॉड ब्लेस यू. आई सेड ओके. आफ्टर 3 days or 4 days I purchased my Ducko, about 3 lakh cash plus. Then I cut something. फिर मेरे पास वापस किसी ने मेरे को 2 तोले की चेन गिफ्ट करे. मैं बोला कुछ तो था वो देने में. ध्यान से सुनना इन चीजों को. कुछ तो था उसको, जब मैंने दिया मेरे साथ कुछ तो हुआ. फिर मैं मिला उस मैन ऑफ गॉड को, और अभी जब मैं उसको मिला ना, उसके गले में इतना मोटा सोने का चेन. अब मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है बोने के लिए, मेरे पास वॉच है, फाइनल मेरा वॉच है, मेरा पूरा पॉकेट खाली है. मिनिस्टर कर रहा है होली स्पिरिट. फिर एक बार मेरे को बोलता है अब क्या चाहता है. आई सेड सेम. आई विश आप समझदार हो. बोला सेम, मेरे को वो चेन चाहिए जो उसके गले में है. मैंने अपना वॉच निकाला, हाथ में पकड़ा. मैंने वॉच को बोला वॉच तो जा तो रही है, वो चेन लेकर वापस आना. आई सो माई वॉच विद इन 1.5 month. आप समझदार. जो बायोलॉजिकल फादर नहीं कर सकता वो स्पिरिचुअल फादर कर देता है. आई विश आप समझदार. जब आप ब्लड को चेंज करना चाहते हो, ब्लड को बनाना भी सीखो. जब आप ब्लड को चेंज करना चाहते हो, आई नीड टू चेंज माई प्रोस्पेरिटी, आई नीड टू चेंज माई वेल्थ, हेल्थ, रिचनेस, सब कुछ बदलना चाहता हूं. नोबडी नोज कि मैं कितना प्रॉस्परस हूं. आप बिलीव नहीं करोगे. आप परचेज BMW 1.5 करोड़ का कार मैं 1 महीने में खरीद लूंगा. यू नेवर बिलीव. पर ब्लड लिमिट्स डालता है. ध्यान से सुनना इन चीजों को लोगों. ब्लड लिमिट्स डालता है. जब आप ब्लड के साथ चलोगे, ब्लड एक ऐसे लिमिट को डालता है जिसके परे आप नहीं जा सकते. दैट्स व्हाई आपके ब्लड में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके ब्लड को चेंज कर सके. आप बार बार ब्लड के साथ सफर कर रहे हो, आप बार बार ब्लड के साथ सफर कर रहे हो, आप बार बार ब्लड के साथ सफर करना इन द सेंस वही बीमारी बार बार आ रही है, वही तकलीफ बार बार आ रही है, वही खांसी, वही स्किन प्रॉब्लम, वही फेलियर, वही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो नहीं हो रहा है, उसी पर्सन के पीछे जा रहे हो जो नहीं चाहिए, वही इंसान. देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर ब्लड. वो प्रॉब्लम तेरे ब्लड में आया है. अब इसको कैसे चेंज किया जाए? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. जेहू. क्या चाहिए तेरे को? येहू, द ब्लड चेंजर. जेहू द ब्लड चेंजर. आई विश आप समझना. इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा आपको. जेहू द ब्लड चेंजर.